is Reeti Upadhyay, your host and host for today's webinar. I would like to take this moment to welcome you all for today's webinar. So I request all of you to tighten yourselves, straighten your back, and be all charged for the roller coaster of knowledge that we are going to take you through. But before we start with anything, let us all pray to God to shower His blessings upon all of us and give us the strength and ability to accept this gift called knowledge. I would request Gracious to kindly play the video for the prayers. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं मिहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि तनुजा किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशीं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृशायितं शून्या
जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Gracious. Now I request our member Miss Sania to tell us about the mission and vision of CMC. Hello everyone, a very good evening to all the members present here. It's my pleasure to honor the beautiful audience gathered here on this platform of CMC Waves of Knowledge. So dear students, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. So the goals of CMC are as follows: training in soft skills like public speaking, stress management, leadership and management by the application of the timeless wisdom in the modern scenario. Second, blending the character with competence in bringing about a long enduring success. Third, unleashing the potential in the individual like concentration, motivation, self-confidence, etc. Fourth, dealing with sensitivity and self-awareness in thoughts, words, and action. Fifth, organizing outing for experiencing closer touch with the nature and the marvelous gift of the Supreme Divine. Thank you. Thank you so much, Sania. Next, I would request our dear Madhuri ma'am to take this moment and tell us about Janmashtami. I will give a short introduction about our dear Madhuri ma'am. She is one of the directors of CMC and a professor by profession in Royal College of Arts, Science and Commerce. And she has been enlightening many students with her immense knowledge for their personal enhancement. She is and has been a mentor and life coach for many students. I request ma'am to take over. A very good evening, everyone. And it gives me indeed a great pleasure and privilege to be here speaking to all of you. And here we are together to speak about something that is very special for all of us. Now, to know what is this special thing? So, it's a time when someone was born. It's a time when it's a time for celebration. And this celebration is something very new for us. Though we have been having lots of celebrations all over the year, but this time it's a new wave of celebration because it's Janmashtami, and moreover than Janmashtami, it is the phase of lockdown. Now, when we say we have got this phase of lockdown, it is the one wherein we think that we have been actually not doing nothing with ourselves. But this is a phase जहाँ पर हमें realize होता है कि असली festivals जो होते हैं वो घर बैठे ही मनाए जाते हैं. और ऐसे ही एक फेस्टिवल को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए CMC has come with a very special idea and a theme. Now, what is a special idea? What is a special theme? This special idea and this special theme is about the celebrations that we have.
And this celebration is something to do with everything that we haven't done always. Or probably it might be done by you all many a times in different phases of life. So we are here with CMC to celebrate this great and most beautiful time of festivals. So also we have decided that we would be having a great celebration in all the festivals like we used to have when the lockdown was not going on. We have celebrated a great way in which we have had the Holi celebration and also the Women's Day celebration. So restarting the celebrations in this lockdown phase. So here we have a huge group called as, or an idea called as Talent Mania. In this, you all can participate, everyone who is here with almost, you can say, any kind of talent within yourself. Now you might say, what kind of a talent? Now talent is with regards to, you can make a poster, you can write down an essay, you can do a beautiful painting, you can make a video, you can make a PPT, you can sing a song or write a song, or else write a poem, narrate a poem, or any creative talent that you have. You can do it for this special day of Janmashtami. To get more details, you can connect with our dear CMC champions, that is Priyanka and Manisha. The most highlighting thing is the winners would be getting, there will be 3 prizes, the first, second and third prize winners. The first prize would be getting a cash prize of 3,000 rupees. The second prize would be getting a cash prize of 2,000 rupees. And the third prize would be getting a cash prize of 1,000 rupees. And all the participants who are going to participate, they all are also going to get the participation prizes also. So every participant, whoever participates with us, will surely be getting something very, very special. So are you all excited for it? I hope you all are going to participate in it. And now comes over here, after this, I am here to also invite you all for the next wonderful seminar. Now, this next wonderful seminar that we're going to have is something which is going to be a life-changing experience for us. Now, why life-changing? So, like we have the stock market seminars, you all know that Thursday comprises of the character building seminars, character management courses. So, the person who is going to be there with us to give us the great lecture, as you all can see it on your screens, he is none other than His Grace Leela Purushottam Das. So now he is actually the one who's going to speak on what is consciousness. If you talk about his educational qualification, he has done his PhD in electric engineering. Or you can, yes, you can see much more details about him. So his name as a professor is Lakshmidhar Behera, and he is a chair professor. He is a head of the Department of Electronic Engineering, and he's working with IIT Kanpur. And his major specialization is in robotics and artificial intelligence. So this person who is a professor with IIT Kanpur, he is the one who's going to be speaking on artificial intelligence. And he's also going to speak about majorly not the original robotics, not just AI, artificial intelligence, but what is this consciousness? He's going to be speaking about this. I request all of you to be please excited, be there, share the poster, share the word with all your friends to understand when a robotic professor, a person who teaches what is artificial intelligence in IIT, he comes and speaks about consciousness. It is really a thing to think about. So exactly everyone, we all have to participate in large numbers, and after participation, let's get ready for Janmashtami celebrations. So yeah, people say that today is Janmashtami. There are 2 ways of celebration, but actually Janmashtami is going to be tomorrow. So tomorrow, therefore, we have kept all these kinds of participation in all your groups. The details have already been sent. We will resend the details today and just now itself in your WhatsApp groups. Look at it and participate in large numbers. Thank you very much, everyone, and a very happy Janmashtami. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to call upon Shivani to introduce our speaker for today.
Hare Krishna. So today our speaker is CA Yogendra Kanodia sir. He has been teaching at various classes, but presently he is been teaching at CA Hub classes, to which he is a co-founder, and also at the DD Institute for CES, to which he is a visiting faculty. It would be a really pleasure to learn from you, sir. All over to you, sir. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Shivani. Good evening, everyone. First of all, happy Janmashtami to all of you. So today's session is obviously on stock market, and we are going to touch upon the share issue concept, how the companies issue share, and how you can actually purchase the shares. So our today's session basically is on issue of shares and how can the public purchase those shares. Are they available for public, or are they issued privately to some institutes? So this we are going to see in the next 1 hour. So hopefully you'll enjoy this session. Let's start. I'll explain you the entire concept of share issue. So today's session we are starting. It's all about issue of shares. Let's start. How the companies issue shares? Are they available for public, or it is only issued to few people? We'll see that in this session. So first of all, there's a concept called as public issue. Public issue. It means that the shares are available for public. Now, I hope you all know about the company's concept, that there are two types of companies, basically, private and public companies. So this is for public companies, and those public companies which are listed on stock exchange. So they are going to issue shares to the public. How can they issue shares? There are two types of public issues, basically. First is IPO, and the next is FPO. IPO is for initial public offer. Initial public offer. So this is the first time that the company is issuing shares to the public. Okay, company is issuing shares to the public for the first time. That's why it is called as initial public offer. So first of all, any company who wants to issue shares to the public must get registered on stock exchange. So there are various stock exchange, but the most recognized stock exchanges are Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, NSE and BSE. So when the company wants to list on a stock exchange and it wants to issue shares to the public, when company first time issues shares to the public for the first time, this is called as initial public offer. And after that, whenever a company needs funds, they'll go for further share issue, more share issues. So that will be called as further public offers. So basically, there are two types of share issues which are for public. First is initial public offer, and the next is further public offer, IPO and FPO. Now, what is the process in which we can apply for the IPO and FPO? Okay, and I'll give you examples of recent IPOs and FPOs. Recently, just before the lockdown, one company issued its shares and it got listed on the stock exchange. And the name of the company was SBI Credit Card.
SBI credit card. So it's basically related to SBI only, but they own credit card business. So they have made a public issue. They have issued shares to the public for the first time. This company, SBI credit card, has issued shares to the public for the first time, and it got registered on the stock exchange. The share was issued at 750 rupees per share. The issue price was 750 rupees per share. Okay. So if anyone wants to buy shares of SBI credit card, see, we all know that SBI is a recognized bank. It has branches all over India. So we think that this company is going to do great in the future. So why not purchase the shares of this company? In that case, we can purchase the shares of the company, but listen carefully, you cannot purchase one share of this company. So whenever the companies are coming with IPOs, you cannot just purchase one share. You'll have to buy a lot. So this share was issued in lot of rupees 15,000. So one lot was for 15,000. So if you want to buy the shares of SBI credit card in IPO, okay, so so basically if you want to buy shares of SBI credit card in IPO, you'll have to invest 15,000 rupees at a go, and you'll get, obviously, if you are investing 15,000 rupees, so 15,000 rupees plus one share is priced at 750 rupees. So 15,000 divided by 750 rupees, you will get as many as 20 shares. You'll get 20 shares in a lot. So it was oversubscribed. Oversubscribed means if, let's say, SBI credit card, the company wanted to sell 1 lakh shares, okay, and it started invitation from public. The invitation received was more than 1 lakh. Means SBI wants to sell 1 lakh shares, but public wants to purchase more than 1 lakh. So there is a case of oversubscription. So it was oversubscribed, but since when the company got listed, initially we entered in the lockdown phase, and entire stock market started going in opposite direction. It started declining. So once this company got listed on stock exchange, the share price got reduced to 550 also. So whoever purchased these shares for 750 rupees, initially 750 rupees, in the lockdown period, the share price reduced to 550 also. Now, you'll have to understand the company issues this shares to public. So this IPO is basically shares issued by company to public. Shares issued by company to public. So companies issuing shares to public. Okay. So this is called as primary market. This is called as primary market. See, company is a seller of shares and public is buyer of shares. And a place where buyer and seller are meeting is called as market. Now this place is fully digital. It's online market. Okay. So it is also a market where the company is issuing shares to the public. Public is buyer, company is seller. So ultimately it's a kind of market only. And this is called as primary market. Okay. So this is initial public offer. I have given you the example also of SBI credit card. Okay. So whenever the companies want to expand or they need fund, they go for share issue. If this is their first share issue, it is called as initial public offer. Let's say after initial public offer, let's say after 2 or 3 years, company wants more funds. Now we all know that in this lockdown period, banks are facing liquidity crunch. They are short of money. So what is happening that Yes Bank was almost on the verge of bankruptcy,
SBI invested in Yes Bank and they have kind of revived Yes Bank. But till now, Yes Bank is facing liquidity crunch. Yes Bank needs money. Yes Bank needs money so that they can provide loans to public and they can earn interest so that their business can run smoothly. Now, Yes Bank is not having enough money. So they decided to come up with share issue. Yes Bank has decided to come up with share issue. Okay, this is not their first time. They have already issued shares to the public. This is not IPO. So see, first time when the shares are issued, it is called as IPO. Now after that, second time, third time or fourth time, whatever it may be, it will be called as FPO. So Yes Bank came up with FPO recently, few days back, at ₹12 per share. So whoever wants to buy shares of Yes Bank, they can buy one share at 12 rupees. Okay, this was the price which was quoted by Yes Bank. So any buyer, if any buyer is ready to buy shares of Yes Bank at 12 rupees per share, he can buy. Okay, so this is for the public offer. Both are public issues because both are issued to public. Now there are some new concepts, and I'll give you examples also which are practically followed in this share market. Next concept is right issues. Right issues. Now, what is right issues? Company wants money. Company wants money. They want to issue shares. But now what the company is thinking, company ये सोच रही है कि हमें पैसे लेने हैं, पब्लिक को शेयर इशू करना है और उनसे पैसे लेने हैं. लेकिन नई पब्लिक से पैसा लेने से अच्छा है हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ओके, हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक बार पूछ लेते हैं, क्या आपको शेयर चाहिए? इफ यू आर रेडी टू बाय शेयर्स, हम बाहर की पब्लिक को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उनसे पैसे नहीं लेंगे, आप ही हमसे ये शेयर खरीद लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए. ये अपनी कंपनी कह रही है. किससे कह रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कि अगर आपको, देखिए, हमको पैसे की जरूरत है, हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, इससे पहले कि हम बाहर की पब्लिक को इनवाइट करें कि आप आके हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, हम पहला मौका आपको दे रहे हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं. तो एक काम करो, आप लोग जो है, अगर आप चाहते हो तो हमसे शेयर खरीद सकते हो ताकि हमको बाहर किसी पब्लिक के पास नहीं जाना पड़े. ये एक तरीका है. देखिए, ऐसा क्यों करती है कंपनीज? बिकॉज होगा क्या कि जब बाहर के शेयर होल्डर्स आएंगे, नए शेयर होल्डर्स आएंगे, ओके, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ में, तो ओनरशिप बट जाएगी. हम जानते हैं दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनीज. अब मान लो पहले 100 शेयर होल्डर्स थे, अब 100 अगर मैं नए बुला लूंगा तो हमारे पास 200 शेयर होल्डर्स हो जाएंगे और जो ओनरशिप है वो 200 लोगों में बट जाएगी. तो ओनरशिप बटने के पहले ये जो हमारे पुराने 100 लोग हैं उनका नुकसान हो जाएगा, इनकी राइट जो ओनरशिप है वो आधी हो जाएगी. 100 की जगह 200 लोग आ जाएंगे तो इनको, आप समझिए, घर में मान लो, हम एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी के घर का एग्जांपल लेते हैं. तो किसी को मान लीजिए किसी की फैमिली में सिर्फ एक ही चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है. तो अगर सिंगल चाइल्ड है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जो सारी प्रॉपर्टीज होने वाली है पेरेंट्स की, वो सब एक ही की होने वाली है. ठीक है, कोई दूसरा अभी नहीं है. लेकिन सोचो अगर एक दूसरा चाइल्ड भी आ जाए तो उससे फिर पहले वाले चाइल्ड के राइट पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले वाले चाइल्ड का जो राइट था प्रॉपर्टी पे, पूरा 100% ओनरशिप उसकी थी कि पेरेंट्स के बाद पूरी प्रॉपर्टी उसके होने वाली है. लेकिन अगर दूसरा चाइल्ड भी आ गया तो अब 2 लोगों में वो प्रॉपर्टी बटेगी, 50-50 हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं जो पहले वाला बेचारा छोटा एक बड़ा बेटा था उसका तो हो जाएगा नुकसान. तो इन दैट केस ये कंपनी भी इसी तरह से ये नुकसान नहीं हो, इसके लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछ रही है कि आप चाहो
तो हम नए शेयर होल्डर्स को इन्वाइट नहीं करेंगे, आप ही हमारे ये सारे शेयर जो है वो खरीद लीजिए। इस तरह से राइट इश्यूज आते हैं। अब राइट इश्यूज जो है वो किसको इशू किए जाते हैं? हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो जिन्होंने पहले से हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। अच्छा, आप जितने चाहो उतने शेयर्स नहीं खरीद सकते। इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपको एक रेशियो दिया जाएगा कि अगर आपके पास इतने शेयर्स हैं तो आप इतना और खरीद सकते हो। लेट्स से द कंपनी हैज कम अप विथ रेशियो ऑफ 1:2, रेशियो ऑफ 1:2। so right issues, right shares का ratio is 1:2. it means that anybody having 2 shares, 2 old shares, जिसके पास 2 पुराने शेयर हैं, that person can purchase from company 1 new share. So ratio is like this, new is to old. So if you have 2 old shares, 2 shares of any company, you can purchase 1 more share. You have got the right. Company will issue the shares first to you. उसके बाद पब्लिक के पास जाएगी। Okay. Now, चलिए, तो let's say 1:2 का रेशियो है और मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। आजकल एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा चल रही है इंडिया में, और उनके जो प्रमोटर हैं वो दिन पे दिन जो है वो रिच बिलियनियर्स की लिस्ट में जो है वो टॉप 10 में और ऊपर के ऊपर जा रहे हैं। अभी 4th लिस्ट पे आ गए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं मैं किसका नाम ले रहा हूँ? नाउ द 4th richest पर्सन इन द वर्ल्ड, और वो हमारे इंडिया के हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। ओके, तो उनकी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। जियो में नए नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और ओवरऑल जो है रिलायंस का जो नेटवर्थ है वो बढ़ता जा रहा है। उनके शेयर्स महंगे होते जा रहे हैं, अब 2000 को क्रॉस कर चुके हैं। ओके, तो मान लो मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं। आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस। ओके, और वैसे तो रिलायंस को और पैसों की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। किस मोड से आ रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उनके पास पैसा कैसे आ रहा है। उन्होंने आईपीओ नहीं किया है, मतलब आईपीओ तो पहली बार ही होता है, तो लाइफ में वो आईपीओ कर चुके हैं। एफपीओ के लिए नहीं गए हैं वो जो है प्राइवेटली पैसा ले रहे हैं। अभी उन्होंने मार्क जकरबर्ग से पैसे लिए, एक प्राइवेटली पैसा ले लिया उन्होंने। ठीक है, तो अलग अलग ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से उनको इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अब सोचिए जरा, हमारे अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं और अगर रिलायंस राइट इशू लेके आ रही है, उसको पैसे की जरूरत है और वो शेयर्स इशू कर रही है, और राइट का उन्होंने रेशियो दिया है 1:2। राइट का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि आप नई पब्लिक से पहले शेयर खरीदने का राइट रखते हो। आप कंपनी को बोल सकते हो कि नहीं, इस शेयर पे पहले मेरा राइट है, आप पहले मुझे शेयर इशू करिए, बाद में जो बचेगा वो पब्लिक को दीजिएगा। तो ये होता है राइट। राइट का मतलब ये नहीं होता कि आपने शेयर ले ही लिया, आपको बस एक राइट दिया गया कि आप चाहो तो अपना राइट एक्सरसाइज करो, आपका अधिकार है, आप बाहर की पब्लिक से पहले ये शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, चलो, तो मेरे पास 1000 शेयर्स है रिलायंस के, और रिलायंस को और पैसों की जरूरत है। वो लोग राइट इशू लेके आए हैं, वो नए शेयर होल्डर्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो पुराने लोग हैं अगर वही पैसे दे दो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे जरा बोलो, अगर 1:2 का रेशियो है और मेरे पास पुराने 1000 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो रिलायंस मुझे मैक्सिमम कितने नए शेयर्स दे सकता है? कितने नए शेयर्स खरीदने का मेरा राइट है? कोई आंसर बता सकता है? आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, और अब रिलायंस ने मुझे राइट दिया है कि आप 1:2 के रेशियो में चाहे तो नया शेयर भी खरीद सकते हैं। ओके, आमिन सेइंग, अच्छा हैंड्स रेज किए हैं, आप आंसर दे रहे हो? जो भी आंसर देना चाहे प्लीज आप अनम्यूट करिए और आंसर दे दीजिए। यस, काफी लोगों ने हैंड्स रेज किया है, कोई भी एक जन मुझे आंसर दे दीजिए। Sir, 500.
500 एग्जैक्टली 500 यस। मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। ये जो न्यू शेयर्स है ना वो आपको कैसे मिलेंगे, न्यू शेयर्स इज इक्वल टू, आपके पास पुराने कितने शेयर्स हैं 1000, ओल्ड शेयर्स 1000 इनटू द रेशियो, सो 1000 इंटू 1/2, 1:2 का मतलब हो गया यहाँ पे 1/2, तो इसका मतलब आपको आधे शेयर्स 500 नए शेयर्स मिल सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि शेयर कितने पे इशू होंगे। मान लो एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस जो है रिलायंस का शेयर का आज जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹2000 पर शेयर। अब मेरे से जो है रिलायंस कंपनी ने पूछा कि आप चाहो तो शेयर खरीद सकते हो, मैंने बोला मैं बिल्कुल खरीदने को तैयार हूँ, 1000 शेयर मेरे पास हैं, आप 1:2 के रेशियो में मुझे 500 शेयर दे सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए आप किस प्राइस पे मुझे शेयर इशू करेंगे। मैं आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, और पुराने कस्टमर को ऑब्वियसली हम डिस्काउंट देते हैं। तो मुझे रिलायंस कंपनी की तरफ से कॉल ये आया है कि देखिए वैसे तो हम पब्लिक को शेयर 2000 में दे रहे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू 2000 है, लेकिन क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, आपने हमसे पहले भी शेयर लिया हुआ है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं आप, अभी भी आपके पास शेयर्स हैं, तो एक काम करिए आप जो है हमको 1500 रुपीज दे दीजिएगा, 1500 रुपीज पर शेयर आपको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू कर रहे हैं। तो एक बात का आप हमेशा याद रखना कि क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो राइट शेयर्स हैं, जो भी राइट इशू आएगा वो हमेशा जो है दिस विल बी इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। ओके, तो क्या पूरी पब्लिक को ये ऑफर गया? नहीं, पब्लिक को ऑफर जाने के पहले हमने क्या किया, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर दिया है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये पब्लिक ऑफर है, दिस इज नॉट एन पब्लिक ऑफर, बिकॉज हमने पब्लिक को कहाँ इन्वाइट किया, हमने तो सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये बात बोली है, घर के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को बोला है। ओके, बताइए क्या आपको ये राइट शेयर का कॉन्सेप्ट समझ गया है? आप अपनी क्वेरीज जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। I request all of you to kindly post your questions in the chat box, and all the questions will be answered at the end of the session. yes, आपको जो भी डाउट है यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अभी तक हमने दो इश्यूज देखे हैं, पब्लिक इशू, अगर फर्स्ट टाइम तो आईपीओ, सेकंड टाइम तो एफपीओ। आईपीओ का एग्जांपल हमने देखा एसबीआई क्रेडिट कार्ड, और एफपीओ यस बैंक। राइट इशू देखा हमने कि इश्यूज में पब्लिक इशू आ सकता है, राइट इशू आ सकता है, उसके बाद बोनस इशू आ सकता है। व्हाट इज बोनस इशू? देखिए राइट इशू का मतलब था हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया कि आप लोग जो चाहें, जो भी आप में से रेडी है वो 1:2 के रेशियो में आप हमारे शेयर्स जो है वो खरीद सकते हैं। इसका उल्टा थोड़ा सा है, इसके जैसा ही है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है, बोनस इशू। अब बोनस का मतलब देखिए, जैसे हमको सैलरी तो मिलती ही है, हम काम करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है, हम ये बात जानते हैं कि अगर हम 12 महीने काम करेंगे तो हमको 12 महीने की सैलरी मिलेगी, काम के बदले आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन बोनस भी मिलता है हमें। अच्छा, तो बोनस का मतलब क्या होगा? ओके, आप लोगों के जितने लोगों के भी डाउट है ना, मैं हर एक के डाउट्स जो है, हर एक की क्वेरीज एट द एंड ऑफ द सेशन सबकी क्वेरीज में सॉल्व कर दूंगा। बोनस इशू, बोनस इशू जो है वो जो अच्छी कंपनीज होती है वो बोनस इशू करती रहती हैं। देखिए बोनस का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे थे कि हम काम करते हैं, उसके बदले में हमको सैलरी मिलती है, हमारे एफर्ट के बदले में सैलरी मिलती है, लेकिन हमने देखा होगा कि दिवाली वगैरह के टाइम पे हमको बोनस मिल जाता है। बोनस मतलब अगर मान लिया हमारी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज है, तो हमको कंपनी ने कुछ 1 लाख रुपीज दिवाली के टाइम पे अलॉन्ग विद सैलरी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपीज की सैलरी प्लस 1 लाख रुपीज जो है वो बोनस।
मतलब बिना काम किए हमको ये एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, फ्री में मिला है। तो आपको बोनस का मतलब है आपको बिना काम किए सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सैलरी में तो फ्री ऑफ एफर्ट हो गया वो, कि आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, आपको बोनस मिला। यहाँ पे कंपनी आपको शेयर्स देगी, कंपनी विल गिव यू शेयर्स विदाउट एनी प्राइस, आपको फ्री में शेयर्स मिलेंगे। ओके, तो ये शेयर्स कितने मिलेंगे? अच्छा, ये शेयर्स कंपनी कब देती है? देखिए मोस्टली क्या होता है, जब कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ओके, और उनको लग रहा है कि उनका शेयर मार्केट में काफी महंगा होता जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल इज एमआरएफ। ऑल्दो इन्होंने अभी बोनस नहीं दिया है, लेकिन एमआरएफ का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि शायद कुछ लोगों को मालूम हो, ये जो एमआरएफ का शेयर है ये काफी महंगा शेयर है। आपको एक शेयर ही ऑलमोस्ट 50 to 60,000 की रेंज में मिलेगा। ये अभी इस रेंज में चल रहा है, कुछ 80,000 भी चला गया था पहले जब मार्केट बहुत अच्छा था। तो ये 50 से 60,000 की रेंज में आपको मिलेगा। अब बताइए इतना महंगा शेयर्स है, तो जो बिगिनर है, जो लोग शुरू में कुछ 10,000 20,000 इससे इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, या जिसके पास 50,000 भी होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो एक ही शेयर थोड़ी खरीदेगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो इस कंपनी का शेयर बहुत महंगा हो गया है। अब कंपनी क्या चाहती है कि क्यों ना हम एक शेयर में से 2 शेयर कर दें, एक ही शेयर में से 2 शेयर कर दें, बंटवारे कर देते हैं शेयर के, ठीक है। तो अगर मान लो 50,000 का एक शेयर है, तो उसी में से अगर हम 2 बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके 25,000 के 2 शेयर हो जाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर्स की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब शेयर की प्राइस कम होने से क्या होगा कि जब थोड़ा सा शेयर सस्ता हो जाएगा, तो मार्केट में उसकी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग उसको खरीदना बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि 50 से अगर 25 में मिलेगा तो थोड़े और बायर्स आ सकते हैं। 50 में हो सकता है लोगों को थोड़ा महंगा लग रहा था, उनको लग रहा था एक साथ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो अब 25,000 में आपको ये शेयर मिल रहा है, तो उसमें थोड़ी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी और कंपनी के शेयर्स का ज्यादा बाइंग सेलिंग होगा, कंपनी का कहीं ना कहीं शेयर प्राइस बढ़ेगा भी, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उनको फायदा भी होगा। तो एक तरह से ये कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं वो ये काम कर सकती हैं। उनको क्या करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स इशू करने हैं। कैसे? इसका भी एक रेशियो होगा, लेट्स से द रेशियो इज 1:1। इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक पुराना शेयर होगा उसको एक नया शेयर फ्री में मिलेगा। अच्छा, तो मान लो मेरे पास 1,000 शेयर्स थे, तो मुझे 1,000 शेयर्स और मिल जाएंगे, तो हमारे पास कितने शेयर्स हो गए? 2,000। तो ये रातों रात हमारे पास डबल शेयर्स आ जाएंगे। क्या हमारे पैसे भी डबल हो जाएंगे? नहीं, आप ध्यान से सुनिए, पैसे आपके डबल नहीं होंगे। आप किसी अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है और आप उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो ताकि आपके पास एक शेयर हो, एक और कंपनी फ्री में दे दे तो आपके पास 2 हो जाए, उस चक्कर में आप फटाफट उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जाएंगे। वैसा मत करिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, अगर मान लो बोनस डिक्लेयर करने के पहले, ये नया शेयर देने के पहले कंपनी का एक शेयर जो है, अगर कंपनी का एक शेयर पहले 2,000 रुपए का था, तो अब बोनस देने के बाद, नया शेयर देने के बाद, आप ध्यान से सुनिए क्या होने वाला है। देखिए 2,000 शेयर्स इंटू एक शेयर की कॉस्ट जो है वो 1,000 है। तो अगर मैं 2,000 इंटू 1,000 करूं तो ये कुछ 20 लाख रुपए आते हैं। 2,000 शेयर्स, 2,000 रुपए एक शेयर के, ये हमारे पास हैं, और 1,000 शेयर्स हैं, तो दिस विल बिकम 20 लाख रुपीस। हमारा जो शेयर का वर्थ है वो 20 लाख है। लेकिन कंपनी ने मुझे 1:1 के रेशियो में नए शेयर्स दे दिए। अब मेरे पास 1,000 + 1,000 2,000 शेयर्स हो गए। लेकिन शेयर डबल हुआ तो उसकी प्राइस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज खुद हमारी प्राइस को हाफ कर देगा। मतलब अब ये जो 2,000 शेयर्स हैं, इनकी पहले वैल्यू 2,000 रुपए थी, 1,000 शेयर्स की वैल्यू, 1,000 शेयर्स थे हमारे पास, प्राइस 2,000 थी। अब उल्टा हो जाएगा, शेयर्स की वैल्यू ये लोग आधी कर देंगे। 2,000 के बदले अब एक शेयर जो है 1,000 का हो जाएगा, आधा हो गया प्राइस। तो अब भी अगर आप देखोगे तो आपके पास 20 लाख रुपए का ही शेयर है।
तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए तो प्राइस आधी हुई और अल्टीमेटली हमको कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इससे फिर मतलब क्या है बोनस शेयर इशू करके? देखिए होगा क्या, जब ये शेयर्स 2000 की जगह 1000 के हो जाएंगे, थोड़े सस्ते हो जाएंगे, तो ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी, क्योंकि कम पैसे में मिल रहा है, तो छोटे जो कम पैसे वाले लोग इन्वेस्टर्स हैं वो भी खरीदना बेचना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी मार्केट में, उस कंपनी के शेयर ज्यादा बिकेंगे और धीरे धीरे वापस से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर का प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 1000 से 1200, 1500 और ये 2000 भी एक दो साल में जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है अभी कुछ एक आध साल पहले ही TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS का बोनस इशू आया था उस टाइम पे, मेरे पास भी TCS के शेयर्स थे। एट दैट टाइम द प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर वाज अराउंड 3600 रुपीज। और जैसे ही कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, ओके, 1 के 2 शेयर कर दिए, प्राइस हाफ हो गई। आफ्टर बोनस शेयर प्राइस reduced to around 1800 रुपीज पर शेयर। तो देखिए आपके पास शेयर 2 हो गए, लेकिन दोनों की वैल्यू मिला के अगर देखेंगे तो 3600 रुपए ही होगी। ओके, लेकिन इसका फायदा है कि शेयर की जो ये प्राइस है थोड़ी कम हो जाएगी। अब आपको एक शेयर नहीं, अगर आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा तो आप याद रखिए, अब डिविडेंड एक शेयर पे नहीं, आपको डिविडेंड 2 शेयर पे मिलेगा। तो एक फ्यूचर में एक फायदा ये है कि आपको डबल डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा, प्लस थोड़े शेयर सस्ते हो जाएंगे, तो इनमें बाइंग सेलिंग ज्यादा होगी, जिससे शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, जल्दी बढ़ेगी। तो ये कुछ फायदे हैं बोनस के। और मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन भी अच्छा होता है कि ये कंपनी जो है रिसेंटली बोनस देती रहती है, मतलब इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है बोनस का। ये भी प्राइवेट तो नहीं हुआ, क्योंकि हम जो बोनस दे रहे हैं पब्लिक नहीं हुआ, बिकॉज जो हम बोनस दे रहे हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे रहे हैं। बताइए क्या ये पॉइंट सब हर किसी को क्लियर है? आप देखोगे तो राइट इशू और बोनस इशू काफी सिमिलर है, बट राइट इशू वाज मेड एट डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन बोनस जो मिला वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा और आपके शेयर जो है वो नए शेयर्स आपको मिल गए, कंपनी ने आपको फ्री में शेयर्स दे दिए हैं। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को समझा है। आपके डाउट्स अगर हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस बात का डाउट मत रखिएगा कि अगर बोनस इशू आ रहा है हमारे शेयर्स डबल हो जाएंगे, मतलब हमारे शेयर्स की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। अगर आपके पास 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 40 लाख नहीं बन सकता, वो 20 लाख का ही रहेगा। हाँ, बस आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डबल हो जाएंगे। आपको फ्यूचर में फायदा ये होगा कि अब आपको 1000 नहीं बल्कि 2000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, जिससे आपको डिविडेंड अमाउंट ज्यादा मिलेगा। ओके, और आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और मार्केट में थोड़ी बाइंग सेलिंग भी बढ़ जाती है, बिकॉज ये थोड़ी सस्ती चीज हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शेयर्स की वैल्यू जो है फटाफट बढ़ जाती है। अब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर दे देना। मैं आपको पूछता हूँ, मुझे जरा बताइए, इंडिया में MI जो फोन है, MI, ओके, Xiaomi का MI, रेडमी है, वो फोन ज्यादा बिकता है या एप्पल आईफोन ज्यादा बिकता है? इस बात पे मैं आपके कमेंट्स चाहता हूँ कि इंडिया में रेडमी ज्यादा बिकता है MI या एप्पल आईफोन ज्यादा बिकता है? यस, ऑलमोस्ट सब लोग मुझे जो है वो MI ही बोल रहे हैं, ठीक है। आपको रीजन मालूम होगा MI का बिकने का, ज्यादा बिकने का रीजन क्या है? मेजर रीजन है उसका प्राइस का कम होना। यस, ऑब्वियसली इट्स अ चाइनीज फोन, तो अभी तो थोड़े, यस यस यस, ड्यू टू लो प्राइस MI का जो बाइंग एंड सेलिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप सोचिए, एप्पल कोई सस्ता फोन निकाल दे, एप्पल अगर कोई सस्ता फोन निकाल दे ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार की रेंज में, MI के जितना, MI के जितना अगर एप्पल भी एक सस्ता फोन निकाल दे अपनी प्राइस को, क्योंकि एप्पल का फोन बहुत महंगा है,
70-80,000 1 लाख रुपीस के भी ऊपर चला जाता है तो लोग कम खरीदते हैं। ऑल्दो सेल्स अमाउंट जो है ना वो एप्पल का ज्यादा होगा, उनका सेल ज्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोबाइल फोन ज्यादा किसके बिकते हैं? वो बिकते हैं एमआई के। तो एमआई उस तरह से कमा रही है। तो आईफोन भी चाहे, तो अगर आईफोन चाहे अगर सस्ता प्राइस कर दे 20,000 रुपए या 15,000 रुपए कर दे तो उनके भी नंबर ऑफ फोन ज्यादा बिकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ज्यादा फोन बेचना चाहते हो, वैसे ही अगर यहाँ पे अगर आप ज्यादा शेयर्स बेचना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ज्यादा शेयर्स बिके, पब्लिक बाइंग सेलिंग करे, ओके, तो शेयर्स को आप बोनस इशू कर दीजिए। जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस हाफ हो जाती है। यहाँ पे मैं एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो हाफ हो जाती है। अगर 1:1 का रेशियो है तो मार्केट प्राइस विल रिड्यूस, market price reduces but face value remains same, okay? तो आपको अगर फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन कॉन्सेप्ट पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आगे जो है वो डिस्कशन हम कर लेंगे, ओके? तो आई होप यहाँ तक सबको समझ गया होगा कि पब्लिक इशू के अलावा कंपनी और तरीकों से भी शेयर इशू कर सकती है। इसके बाद और एक तरीका है एंड दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, okay? So the next way of issuing shares is private placement. आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किसी भी पब्लिक को ऑफर नहीं दिया जाएगा, पब्लिक से नहीं पूछा जाएगा कि आप शेयर खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो, इवन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी नहीं पूछा जाएगा। प्राइवेटली, चुपचाप, मान लो मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, फॉर एग्जांपल रिलायंस, ओके? तो अब रिलायंस जो है वो आज इस लॉकडाउन पीरियड में जियो के लिए उन्होंने बहुत सारा कैपिटल जमा किया, जकरबर्ग से भी कैपिटल लिया है और उन्होंने कुछ मॉर्गन स्टैनली ने भी शायद उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पे रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है, ओके? क्या ये ऑफर हमको दिया था रिलायंस ने कि अगर आप चाहो तो शेयर खरीद सकते हो? हमको तो ऑफर नहीं दिया गया। ये बात जो हुई है ना, ये अंदर अंदर प्राइवेटली फोन पे या वीडियो कॉल पे इनकी बात हुई है मार्क जकरबर्ग से, और मार्क जकरबर्ग रेडी हो गए कि हाँ हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये प्राइवेटली बात हो रही है, जिसको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो बल्क में गुड्स खरीद रहे हैं, बल्क में यहाँ पे शेयर्स खरीद रहे हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया कि आप पूछो मत, देखो कोई अगर बड़ा प्लेयर आपकी कंपनी में एक साथ बहुत सारा पैसा लगाना चाहता है तो उनसे आप जो है फंड्स ले लो। तो नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, एग्जांपल इज रिलायंस जियो। ये बहुत सारा प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं और इनके पास ऐसे काफी सारा पैसा भी जमा होते जा रहा है। चलिए, तो ये है वेज ऑफ इशूइंग शेयर, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। आप जिस तरह से भी चाहो एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ओके? इन सब के पहले देखिए, अब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे जरा बात कर लेते हैं, बिकॉज वी आर इंडिविजुअल्स। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम बोनस इशू ले सकते हैं, हम राइट इशू में जा सकते हैं और हम पब्लिक इशू में जा सकते हैं। इन सब के लिए आपको मालूम होगा, देखिए इन सब के लिए, ये सब की जो मैं बात कर रहा हूं ना, पब्लिक इशू, राइट इशू और बोनस इशू, मैं इनकी बात ज्यादा करूंगा। ये सब जो हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है? इन सब केसेस में कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर इशू कर रही है। कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, ओके? और जब कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स इशू करती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, ओके? अच्छा, मैं आपको बताऊंगा आप आईपीओस में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उस पॉइंट पे भी हम आएंगे। चलिए, एक बात क्या होगा, अब आपको मालूम होगा कि लोग जो है ना डीमैट अकाउंट एक है जिसका हम डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं। डीमटेरियलाइज्ड उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज पहले जो होता था ना, हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट आता था। सर्टिफिकेट मतलब एक पेपर होता था, मान लीजिए ये एक पेपर है जैसे, ओके? ये एक पेपर है, ये सर्टिफिकेट है, इस पे लिखा होगा, इस पे कंपनी ने लिखा होगा कि सो एंड सो पर्सन, मिस्टर सीए योगेंद्र कनौजिया को हमने
1000 शेयर इशू किए हैं और ये इस शेयर के ओनर हैं, ऐसा लिखा होगा सर्टिफिकेट में। अब वैसे सर्टिफिकेट्स नहीं आते, अब तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम किसी शेयर के ओनर हैं? तो आपके लिए ना इसको मटेरियल का मतलब होता था कोई सॉलिड फॉर्म, मटेरियल का मतलब सॉलिड फॉर्म। अब उसको डीमटेरियलाइज कर दिया, मतलब सॉलिड फॉर्म से हटा के उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके नाम पे एक डीमैट अकाउंट खुलेगा जिसका एक ही काम है, डीमैट अकाउंट का एक ही काम है कि आपका जैसे स्टॉक पड़ा होता है गोडाउन में, वैसे ही जो आपके शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में पड़े होंगे। इट इज काइंड ऑफ गोडाउन, जहां पे हमने क्या रखा हुआ है, हमने अपने शेयर्स रखे हुए हैं। ओके, तो डीमैट अकाउंट इज काइंड ऑफ गोडाउन जहां पे आपके शेयर्स खाली स्टोर हुए हैं। आपके डीमैट अकाउंट से पैसे नहीं जाते, आप ध्यान रखिए, आपके डीमैट अकाउंट से पैसे नहीं जाते। आप क्या करते हो, आपका एक कोई और अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट। आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, एक सेविंग अकाउंट को उससे लिंक करते हो, डीमैट से सेविंग को लिंक करते हो। ओके, और फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं आपके, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए, आपके एक तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो, फिर एक डीमैट अकाउंट और एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट है। आप क्या करते हैं, जब भी आपको शेयर खरीदना होगा तो आप अपने बैंक से पैसे ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, शेयर्स बाय और सेल ये यहां से हो सकता है। और जैसे ही आपने शेयर्स बाय किया, 2 दिन के अंदर T+2, मतलब जिस दिन आपने बाय किया प्लस 2 दिन और लगेंगे, उतने में आपका शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, आके स्टोर हो जाएगा। 2 दिन में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने बेच दिया तो ये 2 दिन में फिर आपके डीमैट अकाउंट से निकल भी जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ गोडाउन जहां पे आपके शेयर्स खाली स्टोर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं और वहां से जो पैसा कट रहा है हमारे अकाउंट से, वो जो है वो आपके बैंक अकाउंट से, नॉर्मल सेविंग्स या करंट, आप जो भी बैंक अकाउंट है उसमें से जाता है। तो मुझे जरा बताइए, क्या आपको डीमैट अकाउंट का फंडा समझ गया? ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक्चुअली ये 3 अकाउंट मिल जाते हैं तब जाके हम शेयर्स वगैरह जो है वो खरीद बेच सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आईपीओज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुनिए, आप लोग नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, सबसे जो पॉपुलर फॉर्म है आज का वो है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का टैब दिखेगा, इन्वेस्टमेंट्स का। आप इन्वेस्टमेंट्स के टैब में जाइए, वहां पे आपको आईपीओज के बारे में सब कुछ दिखेगा, आपको कंपनीज के नाम दिखेंगे, वहां पे आप आईपीओ में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आमीन, कॉस्ट टू, देखिए मैंने आपका कमेंट अभी देखा कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करने का कॉस्ट पूछ रहे हैं। देखिए अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स आ गए हैं, तो आपका डीमैट अकाउंट जो है वो 200-300 रुपए से भी खुल जाता है। आप माइनर 200-300 रुपीज का चार्जेस पे करिए, आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। तो डीमैट अकाउंट खोलना आजकल बहुत सिंपल है, बहुत कम प्राइस में हो जाता है। चलिए, आईपीओस, आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करिए, इन्वेस्टमेंट्स के टैब में जाइए, वहां पे आईपीओस जाइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक लॉट में आईपीओस बाय होते हैं, मतलब अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आप एक शेयर नहीं खरीद सकते इनिशियली, आपको 15,000 रुपए का एक लॉट आएगा, उसमें जितने भी शेयर्स आते हैं आप खरीद सकते हो। 15,000 रुपए आपको मिनिमम जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मान लो ₹15,000 का लॉट है, ₹15,000 पर लॉट। आप जितने चाहो उतने लॉट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। मान लो आपको 10 लॉट खरीदने हैं तो आप 10 लॉट का एप्लीकेशन दे दीजिए इनटू 10 लॉट्स। तो होगा क्या, आपके अकाउंट से 1,50,000 रुपीज जो है वो कट जाएंगे, आपके अकाउंट से 1,50,000 रुपीज कट जाएंगे और ये कहीं ना कहीं कंपनी के पास चले जाएंगे। कंपनी के पास ये एक स्पेशल अकाउंट में जाते हैं, कंपनी के नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं, एक स्पेशल अकाउंट कंपनी खोलती है जिसमें शेयर के पैसे सब रखे जाते हैं। तो एक स्पेशल अकाउंट में आपके ये 10 लॉट के पैसे चले गए।
ओके देखिए, अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली जो है ना वो आईपीओ लगता कैसे है। सी होता क्या है, कंपनीज आईपीओ इशू करते वक्त, मान लो हमारी जो कंपनी है, मैं बात कर रहा था एसबीआई कार्ड की, इसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था। तो एसबीआई कार्ड के पास जो है 1 लाख शेयर्स हैं, वो 1 लाख शेयर जो है वो इशू करना चाहती है। ओके 1 लाख शेयर्स, या मैं 1 लाख लॉट बोल देता, चलो 1 लाख लॉट, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें से 50% लॉट्स हैं वो पब्लिक के लिए होता है, 50% पब्लिक के लिए, और 50% जो है ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इनके लिए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनके लिए होती है। तो मैं इनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इनको हम अदर्स में डाल देते हैं। चलिए अब ये हम हो गए, ठीक है। तो ये 50% में कितने आ गए, मान लो 50,000 लॉट आ गए, 50,000 लॉट। ओके चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आप लोग देखोगे, आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपको आईपीओ जो है लगता नहीं है, आपको शेयर्स मिलते नहीं है। डीमार्ट का जब आईपीओ आया था तो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब था और पब्लिक को शेयर्स मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। मान लीजिए ये 50,000 लॉट्स है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, चलो एग्जाम्पल है तो चलिए मैं 2 मिनट और लूंगा आपका, उसके बाद ये सेशन खत्म हो सकता है, चलेगा ना? प्लीज रिप्लाई रिति मैम। रिति मैम Yes, sir. हाँ 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। Yes, sir, definitely. ओके ओके देखिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। मान लीजिए ये खाली 10 लॉट थे, ठीक है। तो एसबीआई के पास 10 लॉट थे, उसमें से 5 लॉट जो थे वो तो बाकी लोगों के लिए चले गए, तो पब्लिक को खाली मिल पाएंगे 5 लॉट। ओके और अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो खरीदने वाले लोग हैं वो कितने हैं। तो खरीदने वाले समझ लीजिए आप कि यहाँ पे 6 लोग हैं, ये हो गए 5 और ये 6। ओके अब देखो शेयर कैसे बांटा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मान लो ये जो पर्सन है इसने अप्लाई किया था, इसने अप्लाई किया था कि मुझे 10 लॉट चाहिए, 10 के 10 लॉट मुझे दे दो। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करेगी, कंपनी इसको पहले सिर्फ 1 लॉट देगी, फिर सेकंड पर्सन को 1 लॉट देगी, फिर थर्ड पर्सन को 1 लॉट देगी, चौथे वाले को 1 लॉट दिया। ओके आप लोगों ने कितना भी लॉट के लिए अप्लाई किया हो, आपको पहले 1-1 लॉट ही मिलेगा। तो ये 4 लॉट हो गए, 5वें को 1 लॉट और दिया, तब तक अपने सारे शेयर्स खत्म हो गए। अब ये 6वें वाले को शेयर्स नहीं मिलेंगे, इनको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, तो शेयर्स आर नॉट अलॉटेड टू हिम, इनको शेयर्स नहीं मिलेंगे। और इनका जो भी पेमेंट इन्होंने किया था, इनके बैंक से जितने भी पैसे कटे थे, इनका सारा पेमेंट जो है वो कंपनी रिफंड कर देगी। और इन्होंने जो एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई किया था वो भी इनको नहीं मिला, तो ऑब्वियसली इनका जो एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा मनी जो इन्होंने पे किया था, एप्लीकेशन मनी उसको बोलते हैं, दैट विल बी रिफंडेड। ओके और इसका टाइम मैं बता दूं आपको, ये 15 दिन, विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो होता है अप्लाई करने का, उसके 15 दिन के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है उसके बाद ये जो है आपको शेयर, जिनको भी शेयर्स मिल गए हैं वो लोग बाद में चाहें तो शेयर मार्केट में अपना शेयर किसी और को बेच सकते हैं। तो हम बाद में सेकेंडरी मार्केट देखेंगे, वो आपको अगले सेशन में वगैरह में देखने को मिलेगा कि कैसे पब्लिक जो एक दूसरे को शेयर बेचती है उसे सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है, वो आईपीओ एफपीओ के बाद होता है। ठीक है तो होपफुली आज का सेशन आप सभी को समझा होगा। तो मैम अभी डाउट्स का इनका क्या करना है? Sir, before we move on to the question and answer, I would just like to inform all the participants about what Madhuri ma'am had mentioned before. See, as we all know, creativity doesn't wait for the perfect moment. It is a fashion in its own perfect moments out of the ordinary ones. The character management courses ISKCON Mira Road organizes Talent Mania with Soul Search, a competition to explore your creativity on the eve of Janmashtami. The competition comprises of a meaning and purpose of life,
meaning and spirituality according to you, meaning of happiness in your eyes, meaning of success according to you. Why do we pray to God and meditate? Take any one or more topic of your choice and create your own innovative masterpiece. As ma'am mentioned before, it can be a PPT, poster video, song, poem, essay, drawing, painting, or any other thing, but it should be self-composed. The age limit for this competition is 15 to 25 years only, and the exciting cash prizes for the winners are: first prize will be given 3,000 rupees, second prize will be given 2,000 rupees, and third prize will be given 1,000 rupees. Also, the participants will be given participation prizes also. You all can register yourself by 11th August 7 p.m. That is today 7 p.m. You will have to register on the link that will be mentioned in the chat box now. Now, also you all can contact Manisha and Priyanka from the CMC team in case you want to participate. Now I would want sir to take on all the questions. I would just read out the questions for you, sir. Okay. Just a second. Yeah. I think the chats have gone up. Sir, there was this one question that came up. Can you explain once more about the existing shareholder? Existing shareholder right issue? Hello, can you hear me, sir? Yeah. I think he's asking about right issues. Shareholders. Okay, yes. The existing shareholders are given option to purchase shares. They are given option. Okay, they can opt for that. It's a right given to the existing shareholders कि आप इस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो. पहली प्रायोरिटी आपको दी जाती है बिकॉज आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो. तो अगर कोई कंपनी नया शेयर इशू लेके आ रही है तो सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि क्या आप लोग ये शेयर बाय करना चाहते हो. हम नई पब्लिक को पूछने से अच्छा आपसे पहले पूछ रहे हैं. तो अगर आप लोग ये शेयर बाय करना चाहते हो तो आप इस रेशियो में बाय कर सकते हो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1:2. तो अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आप एक शेयर और खरीद सकते हो. आपको फायदा ये है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर खरीदोगे. अगर मान लो बाहर वालों को 2000 में शेयर दिया जा रहा है तो आपको ये शेयर 1000 में मिलेंगे. अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि देखिए आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से. आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आएगी. आपने डीमैट अकाउंट खोलते वक्त जो मेल आईडी दिया होगा उस पे ये इन्फॉर्मेशन आपको आएगी. आपको कंपनी की तरफ से मेल आएगा. आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आप अगर फॉर्म फिल कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंच जाएगी. Okay, sir. Can I move on to the next question, sir? Yes. Yeah. So, sir, the other question is, when does the company issue dividend every year, or what is the time? Okay, चलो अच्छा क्वेश्चन है. प्रैक्टिकली देखिए डिविडेंड हर साल कंपनीज देती हैं लेकिन it is not compulsory that companies will issue dividend every year. देखिए सबसे पहली बात तो डिविडेंड होता क्या है. डिविडेंड इज जस्ट a part of profit. Dividend is a part of profit after tax. कंपनीज को जो भी प्रॉफिट हुआ है टैक्स भरने के बाद जो भी बच जाता है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है कंपनी पब्लिक के साथ शेयर करती है, उनको बांट देती है. फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया. उसमें से उनको 30,000 करोड़ का टैक्स भरने आ गया. तो 1 लाख करोड़ में से 30,000 का उन्होंने टैक्स भर दिया. बचे उनके पास 70,000 करोड़. अब 70,000 करोड़ जो है रिलायंस के पास पड़े हुए हैं. रिलायंस सोच रही है अब इन पैसों का क्या करें. तो उन्होंने सोचा कि हमारे इतने शेयर होल्डर्स हैं उनको हम थोड़ा बहुत बांट देते हैं. तो 70,000 करोड़ में से रिलायंस ने लेट्स से 40,000 करोड़ पब्लिक को बांट दिए.
अब डिपेंड करता है आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे आपको उतना ज्यादा डिविडेंड कंपनी देगी। हाँ, शेयर्स में जो कंपनी डिविडेंड देती है वो क्वार्टरली भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो क्वार्टरली अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो वो क्वार्टरली भी आपको डिविडेंड दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक ईयर एंड में अच्छा खासा डिविडेंड भी दे सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड दे, कोई कंपनी सिर्फ ईयरली दे, या हो सकता है कोई कंपनी आपको 3-4 साल से डिविडेंड नहीं दे रही है बिकॉज उनके पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, या फिर उनके पास प्रॉफिट है लेकिन उनको किसी और एक्सपांशन के काम के लिए वो प्रॉफिट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी सोच रही है कि उसको नया बिजनेस शुरू करना है, तो हम शेयर होल्डर से ये पैसा बांट नहीं सकते, अदरवाइज पैसे कम पड़ जाएंगे, तो वो आपसे पैसे नहीं बांटेंगे। तो डिविडेंड जो है प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कंपनी शेयर होल्डर से बांटती है। जितना प्रॉफिटेबल कंपनी होगी वो उतना ज्यादा आपको डिविडेंड देगी, कम प्रॉफिटेबल है तो कम देगी, और अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो वो आपको डिविडेंड नहीं देगी। तो ये एक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है। आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है। कोई कंपनी हो सकता है आपको 2-3 साल से डिविडेंड नहीं दे, कोई कंपनी हो सकता है आपको साल में 4 बार भी डिविडेंड दे दे। तो डिविडेंड का कोई फिक्स्ड ऐसे ईयरली या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको वो 3-3 महीने पे भी दे सकती है, ईयर के एंड में भी दे सकती है, और हो सकता है वो आपको डिविडेंड नहीं भी दे। Okay. Thank you so much, sir. Also, there is a question: when shares split to half, don't the dividends for each share also reduce to half? No. See, what happens कि ये जो कॉन्सेप्ट है, there is a concept of split off and bonus share. स्प्लिट ऑफ में क्या होता है कि स्प्लिट ऑफ में होता ये है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स की फेस वैल्यू कम कर देती है। स्प्लिट ऑफ का मतलब होता है फेस वैल्यू को कम कर देना। तो अगर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, ओके, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी जो है उसमें से 5-5 रुपए के 2 शेयर बना देगी। ये स्प्लिट ऑफ कर दिया, फेस वैल्यू बट गई। तो होता क्या है, जो डिविडेंड डिसाइड होता है, डिविडेंड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड कंपनी फेस वैल्यू के ऊपर डिसाइड करती है। तो अगर मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 50% ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड विल बी पेड एट द रेट 50% ऑफ फेस वैल्यू। और अगर मेरे शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 50% मतलब हमको एक शेयर के बदले 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। द रेट ऑफ डिविडेंड इज मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो बोनस में क्या होता है, बोनस में फेस वैल्यूज कम नहीं होती। अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो बोनस के बाद भी आपके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी, बस आपके पास 100 रुपए के अब 2 शेयर हो जाएंगे। तो आपको मान लो 50% के रेट से डिविडेंड मिल रहा है, तो 100 का 50% 50 रुपया, और दूसरे वाले शेयर पे भी 50 रुपया, तो आपको कहीं ना कहीं डबल डिविडेंड मिल जाएगा। Okay. Thank you so much, sir. The next question is: minimum at what rate does the company give discount to the existing shareholders? Minimum, see, there is no concept of as such कि आपको मिनिमम कितना देना है। डिपेंड्स अपॉन कि कंपनी जो है उनकी मार्केट में क्या वैल्यूज चल रही है और उनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो शायद वो उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे, बट ऑन एन एवरेज कंपनीज गिव ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो 10 to 25%, 10 to 25% के आसपास में कंपनीज जो है 10 to 20, ये जो बहुत कॉमन है, 10-20 इज वेरी कॉमन, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 तक जाते हैं। आपको इतना डिस्काउंट वो दे सकते हैं, इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। Okay, sir. The next question is the dividend paid on common stock taxable to shareholders? See, the taxability, as the concept of taxability is concerned, आपको अगर मान लो 10 लाख रुपए तक डिविडेंड मिल रहा है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सी अगर मैं पब्लिक कंपनीज की बात करूँ ना, तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड द कंपनी इटसेल्फ हैज टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो आपको डिविडेंड देने से पहले, कंपनी को डिविडेंड देने से पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। तो आपके हाथ में जो डिविडेंड का पैसा आता है उसमें से ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, कंपनी ने ऑलरेडी आपके डिविडेंड में से टैक्स निकाल के इनकम टैक्स को दे दिया है। तो गवर्नमेंट आपसे वापस टैक्स नहीं मांगेगी। तो जो भी अपने लिस्टेड कंपनीज हैं, जब भी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन पे टैक्स कटा होगा, तो आपको फिर वापस से उसमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक एक मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं, अगर आपको 10 लाख रुपए से कम डिविडेंड आ रहा है तो आपको कोई
टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। Okay, so I request all the participants that the other questions will be answered to you in the group. For now, you all can just put your attendance and fill the feedback form. By the time, I request Gracious to please play the CMC activities video. Participants, please kindly fill the attendance and the feedback form. Thank you so much, Gracious, for the video. I would like to thank CA Yogendra Kanodia sir for taking out time and providing us with such an informative session. I would also like to call Sheetal to propose a vote of thanks to express our gratitude for today's webinar. A very warm good evening to all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of CMC SCON Mira Road and the entire crew member of CMC, extend a very hearty vote of thanks to all. Saying thank you is more than good manners. It is good spirituality. So let us be grateful to people who make today us happy. A big thank you to CA Yogendra Kanodia sir for his efforts towards a wonderful explanation about IPO, FPO, right issues, bonus issues, and private placement, and gracing your important knowledge and sharing with us your findings and opinions today. I must mention our deep sense of appreciation to Professor Madhuri Agarwal for delighting us by her kind words and giving us excellent coverage about the Janmashtami celebration. Now, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to CMC Director, CMC Management Director, CA Deepak Bansal sir, for the perfect logistic support and guidance he has extended to all of us. I also wish to express my gratitude to all the guests present over here and coordinating members, organizers, CMC champions, and finally our beloved participants for their involvement and enormous cooperation for making this session a successful one. Once again, I thank one and all present over here. Hare Krishna.
Thank you so much, Sheetal, for the vote of thanks. Now I would request all the participants to turn on the camera for a group photograph. I hope everybody has kept their videos on. Next, last but not the least, we have Nandini with us, who will tell us about the next session. Hello everyone. I am here to inform you all about our next session. But before telling about our next session, I would like to say that everything is easy if you are crazy. But nothing will be easy if you are lazy. So guys, never get lazy to learn and always get crazy to learn and explore yourself. Our next session will be on 14th August 2020, that is this week on Friday in the evening from 5 p.m. to 6:15 p.m. And the topic for the next session would be on character management, and we'll learn about what is consciousness at the platform of Zoom app. So guys, be ready to learn because effort and courage are not enough without purpose and direction. Hope to see you all on Friday. Thank you everyone. Hare Krishna. Thank you to all the participants for being a part of today's session. Now we all can end the meeting if you are done with filling the attendance form and the feedback form. Thank you so much. Just a second, ma'am. I want to thank everyone. Oh, sure, sir. Yeah, see, it was great to talk to everyone because हर एक अलग-अलग लोग थे, अलग-अलग व्यूज थे, तो अच्छा लगा सबसे बात करके। और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं तो आपने मैम को बता दिए हैं, और वो नेक्स्ट सेशन में आप जैसे भी होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कुछ और डाउट किए थे, तो सबसे मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि एज अ बिगिनर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ रिस्की कंपनीज से शुरुआत ना करें। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो रिकॉग्नाइज कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो टॉप 10 कंपनीज आती हैं, शुरुआत हमेशा उनसे करें। उससे क्या होगा कि आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होंगे, और जैसे जैसे विद टाइम आप इसके बारे में सीख जाते हो, उसके बाद आप रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो लोग भी येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लीज आप थोड़ा ही पैसा लगाइए, ज्यादा पैसे अभी मत लगाइए। ये मेरी सजेशन होगी आप सभी के लिए। एंड इट वाज प्लेजर टू टॉक टू एवरीवन। बहुत मजा आया मुझे भी। एंड हैप्पी जन्माष्टमी। आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए सबको। यस मैम। Happy Janmashtami to you too, sir. Thank you so much. Now we all can end the meeting.